So last class we were done with discussing utility. Definition of utility was done from my end. इसमें we had discussed, we have to remember only two words. Which two words? Power and capacity. In case of power, the definition will be what? The want satisfying power of a commodity is called utility. In case of capacity, the statement will be the capacity of a commodity to satisfy human wants is utility. ये दो स्टेटमेंट आपको कोई भी आंसर आवे यूटिलिटी चैप्टर से आपको डालना है. नींद आ रहा है? एक सेकंड के लिए आया था, आया ऑफ कोर्स. डोंकी कुछ चाहिए? ऐसा एक चीज दूंगा 3 दिन नींद नहीं आएगा. तुझे सिर्फ यहाँ पे आना है. I have to stand straight. Then you get something from my end. 3 days guaranteed no sleep. Stupid. Yeah, come back. So these were the two definitions that we will be writing for any of the answer. Whichsoever answer they may ask from which chapter? Utility chapter. We'll begin with this only. अच्छा, उसके बाद then we discussed about features of utility, to which you must have learned thoroughly all the features. There were around 9-10 features of utility. फटाफट let's quickly revise those features. The पहला feature क्या था? सबसे पहला feature, utility is a relative concept. Utility is a subjective concept. Utility depends upon the intensity of want. Utility is ethically neutral. ये 4 डाल दिए. Differ वाला जब भी लाओगे आप ना, उस टाइम पे साथ में लेना पड़ेगा आपको, तो you will remember. तो differ के 3 points if you remember. तो differs from satisfaction, differs from pleasure and differs from usefulness. ये तीनों आ गया. Utility can be multi-purpose. 8th point आ गया. Measurement of utility is hypothetical in nature. मतलब hypothetical मतलब you cannot measure utility. There is no particular tool or apparatus which can help us in measuring what? Utility. It is measured in which numbers? It is cardinal. Excellent. Cardinal measurement of utility is done. Okay, and then there's basis of demand. Yeah, utility is the basis of demand. That's all. ये अपने पूरे सब features cover हो जाते हैं. Now what we'll be discussing? We'll be discussing types of utility, forms of utility, types of utility. बराबर है कि नहीं? बुक नहीं चाहिए, सिर्फ ध्यान देना है. Okay, we are discussing types of utility. The very first type of utility. Form utility. कौन सा है? Form utility. Now what do you mean by form utility? ठीक है, पहली बात utility का मतलब मालूम पड़ा. What is it? प्रोडक्ट को यूजफुल बनाता है. मतलब प्रोडक्ट को यूजफुल is you need that product because it is having that capacity to satisfy your want. बराबर है कि नहीं? अभी you are hungry, तो what do you need? Food. That will satisfy your hunger. बराबर है कि नहीं? तो प्रोडक्ट में अगर यूटिलिटी रहे तो ही आप उसको want, like only then you will wish to have that, only then you will desire for that. If the product does not have utility, you will not at all desire, you will not at all think to buy it. बराबर कि नहीं? अब do you prefer to wear gold or not? You don't prefer to wear gold. You prefer to wear what? Jewelry. Raw gold पहनता है तुम? नहीं. Jewelry, of course, yes. अच्छा, लकड़ा चाहिए कि फर्नीचर चाहिए? बट फर्नीचर भी लकड़ा ही है, सिर्फ चेंज क्या किया उसने? फॉर्म. Are you following my point or not? अच्छा, तुमको क्लॉथ देता है दुकान वाला कि तुमको शर्ट और पैंट देता है? Are you getting my point or not? He is not selling you cloth कि ये ले ले भाई, तुम्हारे हिसाब से wrap कर लेना. अरे wrap थोड़ी ना बॉडी कि wrap करके चल जाएगा. Are you following my point or not? What is he giving you? Proper shirt, proper pant, proper things to wear for. बराबर कि नहीं? With proper shape, form. कपड़े, अगर आपको कपड़ा खरीदने जाना है, you want to buy, if you want to go for shopping, what will you buy? Will you buy cloth, कपड़ा, या फिर you will buy shirt and pant? सर एक ही चीज है, will buy shirt and pant of course है, तो है तो कपड़ा ही, फॉर्म अलग है कि नहीं? तो जस्ट बाय चेंजिंग द फॉर्म उस चीज में यूटिलिटी आया कि नहीं? फॉर्म चेंज होने के पहले उसका डिमांड था. Will you ever demand
सादा कपड़ा, नेवर। क्या चाहिए? अरे एकदम आराम, एकदम। और कुछ मंगाओ आपके लिए? थैंक यू। सो फॉर्म चेंज करने के बाद उसका डिमांड बढ़ा, सॉरी, उसमें डिमांड आया। डिमांड क्यों आया? बिकॉज यू फाउंड व्हाट इनसाइड यूटिलिटी बाय चेंजिंग व्हाट, आफ्टर चेंजिंग व्हाट, द फॉर्म। बराबर कि नहीं? अच्छा, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। आपको अपने घर के लिए एक चेयर चाहिए, सोफा टाइप, लाइक यू नो एक्सपोर्ट आजकल आते हैं, आजकल नहीं बहुत टाइम से आता रहे, तो वो लकड़े का ही है। तो आपका मिस्त्री आके देता है लकड़ा ले ले भाई, तो बोलेगा ये पागल क्या दिया है? बोलेगा वो लकड़ा। बेड चाहिए, तो बेड भी किसका बनता है? लकड़े का, ले ले। चलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तुम क्या बोलोगे? आई डोंट नीड लकड़ा, आई वॉन्ट वॉट? बेड और सोफा और चेयर, भले वो लकड़े का बना है। लकड़े का यूटिलिटी आपके लिए नहीं है। यू फाइंड यूटिलिटी इन वॉट? बेड, चेयर, फर्नीचर। इफ यू गेट माई पॉइंट और नॉट? अच्छा, ये जो चेयर पे बैठे हो आप लोग राइट नाउ एकदम आराम से, कोई कोई तो और आराम से बैठा है, तो इन दैट केस वो किसका बना हुआ है? प्लास्टिक। बराबर है कि नहीं? फाइबर मटेरियल है, एंड देन देयर इज अ डेस्क ऑन दैट, पैड टाइप। वो किसका बना है? लकड़े का। बराबर कि नहीं? तो अगर हमको कोई बोलता है ये ले प्लास्टिक का पूरा गुनी एंड देन लकड़े का पूरा स्लैब, एंड आई गिव इट टू यू, सिट, तो बोलेगा सर वेयर टू सिट? है तो वही चीज, फॉर्म अलग हुआ कि नहीं? तो बाय चेंजिंग द फॉर्म वी एड यूटिलिटी इन अ प्रोडक्ट और नॉट? फॉर्म चेंज करने के पहले उसी चीज की डिमांड, उसी चीज में यूटिलिटी नहीं थी, बट बाय चेंजिंग द फॉर्म उसमें यूटिलिटी आया कि नहीं? मिट्टी, मिट्टी का डिमांड है, डू यू फाइंड यूटिलिटी इन मिट्टी? डू यू फाइंड यूटिलिटी इन मिट्टी? मिट्टी, सॉइल, ऑफ कोर्स नॉट। बट बाय चेंजिंग दैट इनटू एक मूर्ति, अचानक से उसमें फॉर्म चेंज करने पे यू फाइंड यूटिलिटी और नॉट? है तो आखिर में मिट्टी का ही चीज, बट वी फाइंड यूटिलिटी और नॉट? ऑफ कोर्स यस। समझ में आया मेरा पॉइंट क्या है? तो बाय चेंजिंग द फॉर्म इफ यू इंजेक्ट यूटिलिटी इनसाइड, बाय चेंजिंग व्हाट? फॉर्म, यू इंजेक्ट यूटिलिटी इनसाइड अ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड व्हिच यूटिलिटी? फॉर्म यूटिलिटी। तो पहली फर्स्ट वन इज व्हाट? फॉर्म यूटिलिटी। एम आई क्लियर और नॉट? श्योर? पक्का क्लियर है? सेकेंड टाइप, द फर्स्ट टाइप इज फॉर्म यूटिलिटी। अब तो हाँ बात बोलना बंद कर, दैट इज नॉट गिविंग मी एनी यूटिलिटी। हाँ, यस भी बंद कर दे, एंड बोल ही रहा तो सही यस यस, नहीं बोल, नॉर्मल बोल। या सो बाय चेंजिंग द फॉर्म इफ वी ऐड यूटिलिटी इनसाइड, इट इज कॉल्ड व्हिच यूटिलिटी? फॉर्म यूटिलिटी। अच्छा, आपके पास जो नोटबुक आप यूज करते हो वो किसका बना हुआ है? पेपर। डायरेक्ट पेपर निकलता है नीचे से, ग्राउंड में से? ऑफ कोर्स नॉट। वो पल्प होता है, पल्प का प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद में पेपर रोल बनता है, फिर वो कटिंग होता है, कटिंग के बाद पे प्रिंटिंग, पहले प्रिंटिंग होता है, देन कटिंग होता है, एंड देन द नोटबुक फॉर्मेट इज बीन। बराबर कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, मैंने बड़े पेपर को कट करके छोटे पेपर बनाए, एम आई चेंजिंग द फॉर्म? नो। डिड आई क्रिएट समथिंग न्यू? बड़ा कपड़ा है कॉटन का, कट करके छोटे कपड़े बनाए, स्मॉल 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 सेट्स, 2 मीटर के सेट होता है ना शर्ट खरीदने के टाइम पे, वो देते हैं तुमको, तो डिड यू चेंज द फॉर्म? नो भाई। लॉन्ग क्लॉथ, शॉर्ट क्लॉथ, ऐसा बोलता है कोई? ऑफ कोर्स नॉट। शॉर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, क्लॉथ इज अ डिफरेंट थिंग। तो इन द फॉर्म इज चेंजिंग, द टर्म ऑल्सो चेंजेस। आपको कभी पूछने आएगा ऑब्जेक्टिव में कि डिड वी चेंज द फॉर्म और नॉट, तो उसके लिए आपको खुद को पूछने का ये चेंज करने पे कोई नया प्रोडक्ट बना कि नहीं। अगर आंसर है हाँ, माइंड आपको देगा अपने आप आंसर, आपका माइंड अपने आप आपको आंसर देगा कि नया प्रोडक्ट बनाया है। तो अगर हाँ है आंसर 110%, व्हाट विल यू से? इट इज फॉर्म यूटिलिटी। अच्छा, रॉ गोल्ड से बनाया मैंने चेन, गोल्ड चेन, तो जो रॉ गोल्ड होता है इट इज कॉल्ड बिस्किट, इफ यू नो। लादी, बिस्किट, डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड यूज होता है, बराबर कि नहीं? और ये क्या बना? गोल्ड चेन। नाम अलग हुआ कि नहीं? चेन बना है, ब्रेसलेट बना है। Are you following my point or not? The name is changing, the form is changing. Then 110%, what will we say? Yes, it is having which utility? अच्छा, ये चेंज कौन करता है? ये फॉर्म चेंज कौन कर रहा है? हाँ, ह्यूमंस तो 110% ह्यूमंस ही है, दैट इज अ गुड आंसर। सब जनरल में सब दे दिया। जानवर तो आएंगे नहीं चेंज करने के लिए फॉर्म, ऑफ कोर्स यस, बट हु इज चेंजिंग द फॉर्म? माय पॉइंट इज दैट, थिंक, ट्रेडर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर,
मैन्युफैक्चरर. नाउ यू गेट माई पॉइंट. फॉर्म कौन चेंज करता है? मैन्युफैक्चरर इज द पर्सन हु इज चेंजिंग द फॉर्म. क्लियर है? मैन्युफैक्चरर फॉर्म चेंज करता है बॉस. तो ये सब कुछ मैं आपको सिर्फ आंसर ही नहीं करा रहा हूं. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एमसीक्यूज ऑल्सो दैट कैन अराइज फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ब्लैक पॉइंट. तो पहला कौन सी यूटिलिटी है? फॉर्म यूटिलिटी. ये डिराइव कैसे होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से. मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व रहेगा तो जाके व्हाट विल बी से फॉर्म यूटिलिटी इज इन्वॉल्व. यू डिराइव फॉर्म यूटिलिटी ओनली बाय मैन्युफैक्चरिंग. क्योंकि कन्वर्ट होता है ना, एक एंड से दूसरा नया प्रोडक्ट बन के आता है बाहर. कटिंग क्लॉथ इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग. मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? श्योर? क्लियर है? सेकेंड यूटिलिटी. ये पहले क्लियर हो गया, फर्स्ट वन. सेकेंड, टाइम यूटिलिटी. सेकेंड इज व्हाट? टाइम यूटिलिटी. द फर्स्ट वन इज फॉर्म यूटिलिटी. सेकेंड वन नाउ इज टाइम यूटिलिटी. सॉरी, क्या होता है? टाइम यूटिलिटी इज टेक्निकली बाई saving or by playing with time you add utility in a product. Yeah, for by waiting for the right time, for the right time to arise, for the right time to come, you wait, then you give it in the market for selling purpose. That process is helping me add what? Utility in the product. That utility is called time utility. Sir, ऊपर से गया, रुक जाए ना, मेरे मालूम है. अब अम्ब्रेलाज का डिमांड आने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर श्योर. रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी डिमांडेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, मे बी सितंबर. बराबर कि नहीं? अब मैन्युफैक्चरर लोगों ने डिड दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग अम्ब्रेलाज और नॉट? 110% स्टार्ट किया, खत्म हो चुका रहेगा मैन्युफैक्चरिंग. दे मस्ट हैव कंप्लीटेड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. दे माइट बी इनटू डिस्ट्रीब्यूशन नाउ. They might be into distribution. मैन्युफैक्चरिंग करके उन्होंने अभी एडवांस में ही मैन्युफैक्चरिंग कर दिया. They will not wait for July to come for the rainfall to start and then they'll start making umbrellas. Of course not. They must have already what? Manufactured those umbrellas. They must have already started the distribution process. And वो जगह पे पहुंच रहा है. कहाँ पहुंच रहा है? एक छोटे छोटे स्मॉल रीजनल जो भी रिटेलर्स के यहाँ पे पहुंच रहा है, ताकि जब राइट टाइम आएगा उस टाइम वो बाहर निकालेगा. कहाँ से निकालेगा? गोडाउन, वेयरहाउस. वेयरहाउस अगर नहीं होता, समझो वेयरहाउस नहीं होता, वेयरहाउस नाम का चीज, गोडाउन नाम का चीज है ही नहीं, तो तुम क्या करोगे? तो तुमको मैंडेटरीली झक मरा के व्हाट यू हैव टू डू? यू विल हैव टू प्रोड्यूस व्हेन द डिमांड एक्चुअल में अराइजेस. बट देन दैट्स टू लेट, क्योंकि डिमांड अराइज होएगा जुलाई में. उस टाइम यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग. इट विल टेक 10-12 days मैन्युफैक्चरिंग, 10-12 days डिस्ट्रीब्यूशन. तब तक आदमी तो डूब गया है बारिश में. आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट और नॉट? एंड उसके पहले वो खरीदेगा नहीं, तो धंधा होना पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वेयरहाउसिंग इज हेल्पिंग मी प्ले विथ व्हाट? टाइम. तो वेयरहाउसिंग इज हेल्पिंग मी डिराइव. अच्छा, अम्ब्रेला का अभी यूटिलिटी है? यू डोंट वांट अम्ब्रेला राइट नाउ, क्योंकि वो दैट इज नॉट हैविंग एनी कैपेसिटी टू सैटिस्फाई माय वांट. वांट ही नहीं है. वांट अराइज कब होगा? जुलाई में. जुलाई में वांट अराइज होगा मेरा. क्या? किसका वांट? नहीं बिकने का वांट. अम्ब्रेला का वांट नहीं है, नहीं बिकने का वांट. तो वो नहीं बिकने का वांट सेटिस्फाई कौन करता है? अम्ब्रेला. कब करेगा? जुलाई में. तो मैं खरीदूंगा कब? जुलाई में. मतलब बाजार में एक आधा नमूना होता है जो एडवांस में सस्ता मिलेगा अम्ब्रेला, अब भी ले लेते हैं. 1000 में 1 यू विल फाइंड. बाकी 999 या तो उनके पास ऑलरेडी घर पे पड़ा हुआ होता है, उनके भी गोडाउन में अपना होता है ना ऊपर मालिया, वो गोडाउन है अपने लिए. वो नीचे नहीं होता है अम्ब्रेलाज. अभी नीचे क्यों रखेगा? काम का ही नहीं है. निकाल, ऊपर जा. दे विल रिमूव व्हेन द राइट टाइम अराइजेस. टाइम अभी यूटिलिटी नहीं है बॉस. यूटिलिटी कब है? जुलाई में यूटिलिटी है. आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. तुम अचानक से ऐसे अभी लेके मारेगा किसी को, होली है, बुरा ना मानो, होली ऐसा मानेगा नहीं, मारेगा वो. टाइम ही गलत है. तो सर मेरे पास कलर पड़े थे तो मैंने फेंक दिए, तो तेरे को पब्लिक फेंक देगा. तो यू हैव टू वेट नाउ फॉर द राइट टाइम टू अराइज. कभी? ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल. उस टाइम पे यू कैन अगेन प्ले विथ व्हाट? कलर्स. तो सर दुकान वाला बेचारा जिसका माल बिका नहीं होगा होली के कलर्स का, वो क्या करेगा? वो अगेन प्रिजर्व करेगा गोडाउन में, एंड विल वेट फॉर 1 more year.
बहुत रेयर है ना बीच में खरीदेगा कोई कलर, ऐसे कौन खरीदता है कलर्स, ऐसे रास्ते पे फेंकता है कलर्स, कभी देखा किसी को? ऑफ कोर्स नॉट। क्लियर हो गया? सेम फॉर क्रैकर्स। हर फेस्टिवल, हर सीजन, हर सेक्टर के हिसाब से टाइम, टाइम को जो बीट करता है, कौन बीट करता है? टाइम को कौन बीट करता है? अरे अब टाइम का तोड़ कौन दे रहा है? साउंड। सर मेरे को जो वर्ड क्लिक आएगा मैं बोल देगा सर। अभी साउंड आया, फिर काऊ आएगा, फिर विलेज आएगा। सर टिकट काट रहे गाँव का। माई पॉइंट इज दिस टाइम के बैरियर को सॉल्व कौन कर रहा है? हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूं, हु इज बीटिंग टाइम, हु इज हेल्पिंग मी बीट टाइम? वेयरहाउस इज हेल्पिंग मी बीट टाइम। इफ यू गेट माई पॉइंट, दैट इज वाई warehouses create time utility. Because warehouses are there, a product will have what? Utility at the right time. Warehouse नहीं होता तो उसका डिमांड आता नहीं। तो सेकेंड टाइप इज व्हाट? टाइम यूटिलिटी। थर्ड टाइप पे आते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, प्लेस यूटिलिटी। सर ये क्या है? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है? दुकान के बाहर, है ना? हर दुकान के बाहर मैन्युफैक्चरिंग होता रहेगा और दुकान में डायरेक्ट बेचता रहेगा वो, या तुम्हारे घर के बाहर बनता रहेगा सामान? ऑफ कोर्स नॉट। मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस एट सम रिमोट एरिया, नॉट इन द सिटी एरिया। दैट फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री इज आल्सो इन अ रिमोट एरिया, इन लाइक एकदम बाहर होता है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, समझो वो इंडस्ट्रियल एरिया है, एग्जांपल के तौर पर पुणे। पुणे में तुम्हारा कोई पर्टिकुलर हब रहेगा, इंडस्ट्रियल हब होता है, ये हर सिटी में होता है। तो वैसे पुणे में एक पर्टिकुलर हब है जहाँ पे तुम्हारा अम्ब्रेला बनता है। अब अम्ब्रेला बनता किधर है? पुणे में। वहां से वो फेंकता है, मुंबई में अपन कैच पकड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, डोंकी है, हाँ बोलता है, देखे पुणे से फेंकेगा। अगर ऐसा आदमी है तो जैवलिन थ्रो में फेंको उसको। अब स्टेडियम के बाहर है, भाला स्टेडियम के बाहर जाएगा। वो नीरज पांडे नाम है उसका, क्या नाम है? नीरज चोपड़ा, सॉरी, कोई बार है, वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा बॉस, कि स्टेडियम ये वाला स्टेडियम में फेंका ओलंपिक्स में, पहुंचा हुआ वाला स्टेडियम में। क्या हाँ बोलता है, नॉनसेंस। तो ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुआ? पुणे में। तो गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग इन पुणे, दे मैन्युफैक्चर्ड। वहां से गुड्स को लाया जाता है in particular each and every particular place, right? Through what? Transportation. अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, आपको बोला गया होता कि भाई अगर आपको अम्ब्रेला खरीदना है ना, you'll have to go to पुणे, है बोले क्या वापस यस बोलता है? तो बंद कर दिया तुम्हारा दोनों का आदत यस और हाँ बोलने का। सो अगर आपको मैं बोलूँ अम्ब्रेला चाहिए, बोलेगा सर बारिश आने वाला है सर, जुलाई महीने, जा पुणे जा लेके आ। अरे सर मैं घर के बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इट्स रेनिंग राइट नाउ, आई डोंट केयर। तो क्या बोलेगा? I don't care, I don't want umbrella. Of course you'll say I don't want umbrella, I don't want this company ka umbrella, then I'll prefer to buy some other company ka umbrella which is available within my vicinity, within my range. Are you following my point or not? तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण वो प्रोडक्ट में यूटिलिटी आया कि नहीं आया? दैट यूटिलिटी इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, will anyone ever prefer to buy the product? जो रहते रहेंगे ना 15-20 लोग नियर बाय पुणे के फैक्ट्री के, दे माइट प्रीफर टू बाय। अच्छा, तुम लोगों का ये आजकल कल्चर है ये सब स्नीकर्स का, तगड़ा कल्चर है, 110% ना, क्या बोलता है 100% है, एंड इट इज गोइंग अप ओनली, पीपल आर गोइंग मैड। मतलब पागलपन। I would have never dreamed in my life when I was a kid or maybe I became an adult 18, 19, 20, 22 के लोग पागलपंती करेंगे ऐसा कि जूतों के लिए घर खरीदेंगे, जूतों के लिए बनाएंगे वार्डरोब। पागलपन है, बट जो है वो है। द टाइम सेज वी हैव टू एक्सेप्ट इट, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट इट। अब तुम्हारा पागलपन को टेस्ट करने के लिए मैं तुमको बोलता हूँ, नाइकी का जॉर्डन आया है नया वाला, बट इट इज अवेलेबल ओनली इन कैलिफोर्निया। जा लेके आ जा। सर ऑनलाइन से क्या वायर से तेरे पास आएगा? कैसे मंगाएगा? ट्रांसपोर्ट नहीं है, मैं बोलता हूं ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। देयर इज नो सुविधा फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। अब जा,
अब कैनियो को टिकट बुक करेगा किसका? कैलिफोर्निया का। एक्सीलेंट। जावानु 80,000, आवानु 80,000, 1,60,000 नो ट्रैवल। 1.5 लाख का अलग खर्चा, जाएगा टच करके तो आएगा नहीं, तो 1.5-2 लाख का अलग खर्चा। जूता खरीदेगा 40,000 मैक्सिमम। वाह, 40,000 के जूते पे 4 लाख का खर्चा। ये ट्रिप नहीं वाड़ी, तो विल यू प्रिफर टू बाय दैट? ऑफ कोर्स नॉट। अचानक से जिसमें यू आर फाइंडिंग यूटिलिटी, अचानक से जिसमें यू आर फाइंडिंग व्हाट? लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ यूटिलिटी। सर जॉर्डन सर भगवान है मेरे लिए, जूता भगवान हो गया है, ठीक है। अचानक से तो क्या बोलेगा? नहीं चाहिए, वो मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसके पास नहीं जाएगा, मेरा भी ईगो हो गया। दैट्स ये मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? दैट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। अब वही जॉर्डन अगर आपके विसिनिटी में अवेलेबल है, मैं बोलूंगा बोरीवली, देन यू माइट प्रेफर टू ट्रैवल। चल भाई जॉर्डन के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, हाँ जिधर भी मिलता है, डोंट केयर। ए भाई आओ नहीं इधर। एंड द वर्स्ट थिंग इज these people who are buying these expensive like sneakers, they're not wearing them. They're preserving them. अब पहनने वाला 10 में एक ही दिखा है मुझे, ठीक है। पहनने वाले 40,000 का जॉर्डन खरीद के, एग्जाम्पल की, तो जो भी ब्रांड है, जॉर्डन जो भी है, हाँ ये खराब तो बाहर भी होएगा ना यार। ये देख यहाँ पर से एंटी इंडियन आया इधर। अरे सर क्यों यूएस में कचरा नहीं गिरता तेरे पैर पे? डस्ट बहुत कम। जाके आए नहीं है, जो पिक्चर दिखाया है अब तक ने वही देखा है, हाँ तो पहनते जॉर्डन को, तो मार्केटिंग करता है। एनीवेज तो नहीं, दे डोंट वेयर यहाँ पे, तो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एनीवन वेयरिंग दोज हडिम्बा शूज। आई कॉल देम हडिम्बा। मेरा भाई भी थोड़ा पागल है ये सब चीजों में, बट ठीक है, कांट हेल्प इट। डिटेल चाहिए रखो, एड्रेस भी तो चाहिए, और कुछ या सो दैट इज कॉल्ड विच वन? प्लेस यूटिलिटी। फर्स्ट वन फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन अरे क्या? यस, फोर्थ वन नाउ सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी का मतलब जो भी सर्विसेज हम तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट नाउ प्रोवाइडिंग यू सर्विस और नॉट? ऑफ कोर्स यस, दैट इज हैविंग यूटिलिटी और नॉट? यस, सर्विस यूटिलिटी। लॉयर्स गिव सर्विस, डॉक्टर्स गिव सर्विस, टीचर्स गिव सर्विस, ये सब सर्विस यूटिलिटी हो गया। क्लियर हो गया? फिफ्थ वन नॉलेज यूटिलिटी। तुझे पता है आईफोन नया लॉन्च हो गया था अभी, ये अप्रैल में लॉन्च हुआ था, मालूम है? मालूम है क्यों? मालूम है? नॉलेज तेरे पास, तेरा कहाँ से आया? एडवर्टीजमेंट। बोलते सर आई हैव नॉलेज तेरे पास कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, इफ यू गेट माय पॉइंट। द लेटेस्ट जो भी अप्रैल में आया, मैं तो तुक्का मारा है सिर्फ। सच में अप्रैल में आया था? अप्रैल के बाद, अप्रैल में चल रहे अपन, और अप्रैल के बाद आया? आई एम नॉट सो श्योर, मैंने तुक्का। ए गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू जब भी आया है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज यू विल बाय और यू विल थिंक अबाउट बाइंग, या फिर यू विल फाइंड यूटिलिटी इन समथिंग व्हेन यू नो दैट थिंग एग्जिस्ट्स। अगर तुमको पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है, हाउ कैन यू हैव यूटिलिटी? हाउ कैन यू फाइंड यूटिलिटी इन समथिंग व्हिच यू डोंट नो एग्जिस्ट्स? अभी आईफोन 20 आ गया एग्जांपल के तौर पर। अरे एग्जांपल दे रहा हूं, बेवकूफ नो बोलता है। बट अभी लॉन्च ही हुआ है, मार्केटिंग उसके बारे में हुआ नहीं, किधर कुछ भी, किधर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अक्का मार्केट शांत है, दुकान में आ गया है, तो सोचता है बायर क्यों नहीं आ रहा है? अरे बायर कैसे आएगा? बायर को पता नहीं है, तो फॉर दैट दे यूज व्हाट? एडवर्टीजमेंट एज अ मीडियम टू प्रोवाइड नॉलेज टू whom? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स गेट द नॉलेज, दे एक्वायर नॉलेज एंड देन दे फील हाँ लेना पड़ेगा, वो जूना वाला आईफोन जूना हो गया है, नया आईफोन लेना पड़ेगा, कुछ तो नया आएगा। यही सोचता आ रहा हूँ हर साल, एवरी ईयर, इवन आई थिंक समथिंग न्यू दे गेट, नथिंग न्यू दे गेट। सिर्फ कैमरा 3 के 2 करते, 2 के 3 करते, बड़ा कैमरा छोटा कैमरा कर देते। हाँ अब 1 हो गया, ई है ना, इकोनॉमिक क्लास, 1 कैमरा। कमिंग बैक,
सो दैट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी. पांचवा, पहला कौन सा है? ऑल ऑफ यू फटाफट. फॉर्म यूटिलिटी. सेकेंड, टाइम यूटिलिटी. थर्ड, प्लेस यूटिलिटी. फोर्थ, सर्विस यूटिलिटी. सलोन कौन बोल रहे? सलोन बोला कोई? आई शपथ सलोन बोला कोई? सर्विस यूटिलिटी. फिफ्थ, नॉलेज यूटिलिटी. यह 5 यूटिलिटी है. क्लियर हो गया? सिक्स्थ वन, पोजेशन यूटिलिटी. कौन सा है? पोजेशन यूटिलिटी. सर ये क्या होता है? अब अगर आप कोई चीज बाय करते हो, खरीदते हो, यू बाय फ्रॉम वेयर? शॉप. शॉप, विच शॉप? होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री आउटलेट्स और रिटेलर्स. 99% रिटेलर जो होता है. तो यू गो टू रिटेलर्स एंड ओनली देन यू बाय. इमेजिन करो तुमको वो बोलेगा कि एक पीस में नहीं मिलेगा. इफ यू वांट टू बाय, यू विल हैव टू बाय 10 पीस टुगेदर. यू विल नॉट. आईफोन खरीदने क्या बोलता है? 10 आईफोन खरीदना पड़ेगा. अरे किडनी 2 ही है, 10 किडनी कैसे बेचू? एक किडनी बेच के पैसा जितना आया उससे में एक आईफोन आएगा. अब आओ क्या ना है बाय 10 किडनीज. अभी मेरे को 5 लोगों को मारना पड़ेगा तो 2-2 किडनी बोलेगा. क्या बात करता है तू? बराबर के नहीं? आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे हु इज हेल्पिंग मी गेट प्रॉपर पोजेशन ऑफ kidney, a donkey. Who is, guys, who is helping me get proper possession of my desired product, जिसमें I find utility? Retailers. Retailers. अच्छा, एक और चीज, retailers सब जगह पे आपको मिलेंगे. Every 100 meters, 40 meters, 50 meters. एटलीस्ट जनरल स्टोर्स है, फिर देन स्टेशनरीज है. एंड देन अगर आपको सेलफोन चाहिए तो सेलफोन का 110% विद इन 1 किलोमीटर रेडियस विल फाइंड 4-5 शॉप्स. रेडियस बताया मैंने भाई, तो बहुत बड़ा एरिया हो गया वो. तो 4-5 शॉप मैंने कम बताई है. विल बी मोर देन 4-5 शॉप्स इफ यू गेट माय पॉइंट. रुक जा, अभी अब इरिटेट हो रहा है. क्लियर है? सो देन दीज शॉप्स आर रिटेलर्स. दे आर गिविंग मी व्हाट? अ फैसिलिटी. दे आर गिविंग मी अ फैसिलिटी दैट इज हेल्पिंग मी व्हाट? बाय माय प्रोडक्ट इन माय डिजायर्ड मैनर. एंड वो लोग के पास में जब जाऊंगा, आई गो टू अ रिटेलर एंड आई गिविंग मनी, विल ही गिव द प्रोडक्ट राइट नाउ? ऑफ कोर्स यस. वो ये नहीं बोलेगा कि आओ 3 दिन के बाद. तो मैं क्या बोलूंगा? आऊंगा 3 दिन के बाद पैसा लेके भी. आई एम गिविंग हिम मनी राइट नाउ. ही इज गिविंग मी द पोजेशन और नॉट इन हैंड. तो ही विल आई बाय और नॉट? इफ ही से अभी नहीं अवेलेबल है, या ही से अवेलेबल इन 10 यूनिट्स, बाय इन होलसेल, तो विल यू प्रेफर टू बाय? नो. In my desired possession, I am able to buy. That's why retailers are creating which utility? Possession utility. 5-6 है. पहला कौन सा है? Form utility. Second, time. Third, place. Fourth, service. Fifth, knowledge. Sixth. अभी ये आंसर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें से they can ask objectives, या फिर they can ask for 2 mark question. Explain form utility, place utility, time utility, service utility. Any of the one फॉर्म्स और टाइप्स. या फिर 4 मार्क का ऑल टुगेदर जैकपॉट आंसर आ सकता है. एक्सप्लेन यूटिलिटी एंड इट्स टाइप्स. पल्ले बढ़ रहा है मेरा पॉइंट क्या है? यू कांट स्किप एनी ऑफ देम. और इतना मस्त आंसर है, प्रैक्टिकल है. द बेस्ट पार्ट इज प्रैक्टिकल. यू कैन एसोसिएट ईच एंड एवरी पॉइंट विद डे टू डे लाइफ, अनलाइक मैक्रो दैट विल कम लेटर ऑन. माइक्रो में सब कुछ प्रैक्टिकल है. एवरीथिंग यू कैन एसोसिएट विद व्हाट? योर डे टू डे लाइफ. ये क्लियर हो गया? श्योर है? एकदम चौक्का क्लियर है कि नहीं? पक्का? ठीक है. 2 आंसर कर दिया है. देयर आर 2 व्हिच वी आर डन विद. पहला कौन सा हो गया? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. सेकंड वन, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. दोनों क्लियर कट एकदम क्रिस्टल है. तीसरा नाउ थर्ड. ठीक है, थर्ड आंसर इतना ज्यादा डिटेल्ड में है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा डेलिकेट है कि अगर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं दिया, ऊपर से जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये आता है 8 मार्क के लिए. ओह सर 80 में 8, 10% वेटेज. ऑफ कोर्स यस, इट कम्स फॉर, एक सेकेंड यार, इट कम्स फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स. अरे 8 मार्क्स, 10% है. इट कम्स फॉर 8 मार्क्स. सर ऐसा क्या है आंसर में? बिफोर आई स्टार्ट विद दैट आंसर, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा. मोक्ष विल बी माई चीफ गेस्ट फॉर द एग्जाम्पल. ठीक है, सर की फुर्त है. या
तो मोक्ष, बिकॉज लास्ट टाइम ऑल्सो ही वॉज वेरी लाइक फीलिंग इनसिक्योर था लास्ट टाइम भी कि मेरे को एग्जाम्पल में नहीं लिया, तो नहीं आपको ही लेंगे एग्जाम्पल में, इस चैप्टर में तू ही है, नेक्स्ट चैप्टर में कोई और आएगा, बट ये चैप्टर में तू ही है, चाहिए था सबका. सो नाउ मोक्ष, यू टेल मी योर फेवरेट फूड आइटम. फेवरेट मतलब यू डाई फॉर इट होता है, जैसे कि मेरे को पूछेगा तो पानी पूरी मेरे लिए, तो कोई तो होगा ना डिश, क्रेविंग है सर अभी भी, ब्रिंग इट ऑन सर, मैं रेडी है. तो क्या है, वड़ा पाव है, जैन नॉन जैन जो भी है, पास्ता. कुछ और बोल, कोई और बोल, पास्ता में क्या तकलीफ, हाँ चल ठीक है पास्ता ले ले, चल ठीक है पास्ता है, मैं ट्राई करता हूँ तेरे को, मैं पास्ता में फिट करूँ, ठीक है. कौन बोला ब्रेड सॉस? हाँ रेड सॉस वाला मैकेरोनी के पेने है, नहीं और कुछ चाहिए, चीज विद चीज, टाइम पास करता है. पास्ता लेते हैं ना, इतना डिटेल में जाते नहीं है अपन. सो पास्ता इज योर फेवरेट डिश. तू सुबह से भूखा है और शाम को तेरे मालूम में पार्टी है, सर ने पार्टी रखी है, तो जान सुबह से कुछ खाएगा ही नहीं. क्यों? शाम को पार्टी है, पास्ता ही पास्ता है. वो काउंटर में तोप लेके आता है इतना बड़ा, वो सब लेने वाले हैं अपन. पास्ता फेवरेट, तो इज लाइक आई वेट 7:30 in his watch, he gets ready, he reaches the venue. मेरे को ऐसे ग्रीट करते हैं, हैप्पी बर्थडे सर, पास्ता है, हाँ हैप्पी बर्थडे, बराबर है. तो he reaches there, the food starts, everything starts, he starts with pasta. प्लेट लिया, उसमें पास्ता डाला, गुड क्वांटिटी, मतलब एकदम दिखना भी नहीं लोगों चाहिए, दैट्स अ मैनर बोलते हैं ना अपन, तो मैनर्स के हिसाब से उसने पास्ता, हाँ तो क्या बात है. अज्यूम करते मैं तेरे घर से लेके आया पास्ता, मैंने ऑर्डर दिया तेरे घर पे कि मेरे पार्टी में मोक्ष के घर का पास्ता ही बिकेगा, बस. अब तेरे को ज्यादा रिजेम्बलेंस होगा, ठीक है, तो जो पूरा जो बर्तन में आता है पास्ता वो तेरे घर से ही आ रहा है, बस. अब वो इमेजिन कर, अपन पूरा इमेजिन कर रहे हैं, मैं पार्टी दे रहा हूँ, वो भी इमेजिनेशन ही तो है. ये देख आज जो बेवकूफ. या कम बैक. So right now, this is a situation you get, you take some good moderate amount that is acceptable in society. ऐसा नहीं कि आंखों में आए ये क्या कर रहा है, इतना तो भर के ले लिया, पास्ता लिया, बैठा तू, ठीक है, सुबह से भूखा है, जोरदार भूख लगी है. फर्स्ट बाइट यू ईट, सेकेंड बाइट यू ईट, यू फील समथिंग इज गोइंग इन योर स्टमक, कुछ तो गया है रे फाइनली, समथिंग हैज गॉन इनसाइड, यू फील हैप्पी. Then you eat more. She can resemble that. उपवास है आज. Then she, अरे तो उपवास में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पास्ता का. Can't help it. Yeah. Come back. तो ये खा रही है, ये खा रहा है. अब खाते खाते तेरा फर्स्ट पोर्शन ऑफ पास्ता इज ओवर. स्मॉल पोर्शन ही टुक, ऑफ कोर्स मैनर्स मेंटेन करना पड़ता है, अब लोगों की आंखों में भी आना नहीं है कि घर का है मतलब एक भी खाएगा. फर्स्ट पोर्शन इज ओवर, देन अगेन ही गोज, चुपके से घूम गिर के पास्ता वाले काउंटर में, इधर देखा कोई देखा नहीं, सेकंड पोर्शन लिया. तू पूरा सिचुएशन समझ ना, एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड देयर इज अ मैसेज इन द स्टोरी, ठीक है, स्टोरी बना रहा हूँ उसमें मैसेज है. बैठता है, मजे से खा रहा है, कोई देखा नहीं है इसको, इसने सेकंड पोर्शन लिया है, नो वन सॉ बिकॉज ही इज वेरी स्मार्ट, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी. वापस यहाँ घूम फिर के वापस कहाँ पहुंचा, उधर लेफ्ट देखा, राइट देखा, कोई देखा नहीं, थर्ड पोर्शन लेके अब बोलता है ये मेरा पेट भर जाएगा, मस्त है, तीसरा पोर्शन खा लिया. बट बोलता है ना लास्ट होता है ना एक, वो तीसरा पोर्शन भी हो गया, बट फिर भी घर का है, मम्मी ने बनाया है और सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो इज लाइक चल एक और हो जाए. होता है ना, फ्री, मम्मी ने बनाया, फेवरेट फूड आइटम, 110% है. तुम क्या, मैं भी करता है ये सब, फुकटा कौन छोड़ता है. अरे सर ए बेशरम, तुम भी करता है, छोड़ो ना. तो वहीं घूम के बाबा पहुंचा काउंटर में, लेफ्ट देखा, राइट देखा, कोई देखा नहीं, लेके डाल दिया काउंटर का प्लेट में. फोर्थ पोर्शन खत्म हो गया, नाउ ही इज फुल, लाइक फुल मतलब सेमी फुल है बट फुल है काइंड ऑफ, एंड ही इज हैप्पी एंड ही इज कमिंग टू मी, थैंक यू सर, पास्ता वाज ग्रेट. पास्ता ग्रेट है, लेके आ पास्ता. क्या खाया नहीं, कितना खाया तूने? खाया सर, बट ठीक है खाया थोड़ा बहुत, नहीं चलेगा नहीं. वेटर गेट पास्ता. मनवार तो कराते कि नहीं कराते अभी, सो चाहिए था स्टूडेंट, कम ऑन यार. तो
पास्ता लेके आया, उसको मैंने काउंट बोला दाल ईट प्लीज ईट। तो अरे यार किधर, चल ठीक है खा लेते हैं और तो क्या है, किधर गले पड़ गया, कहाँ बोला मैंने पास्ता के बारे में सर को, तो चिपक गया गले पे। खाया, खा रहा है मर मर के, मतलब खा रहा है, इट इज गोइंग डाउन बट ही इज ईटिंग, क्योंकि जगह थोड़ा पेट में था। फॉर्चुनेटली ही हैड द फिफ्थ पोर्शन ही हैड। पोर्शन स्मॉल ही है, ठीक है। अब यजत ने ये सब देखा था, ही नेवर शोड कि ही इज वॉचिंग एवरीथिंग। ये सब कुछ देख रहा है कि 5वां पोर्शन लेके बैठा है और ये मेरे पास से सीखा है ये कॉन्सेप्ट जो हम सीख रहे हैं अभी। तो ही वांटेड टू इम्प्लीमेंट, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना था इसको किसी इंसान पे। तो ही फाउंड द पार्टी एंड मोक्ष एज अ प्रॉपर एग्जाम्पल जहाँ पे ही कैन एक्सपेरिमेंट क्या कि जो सर ने सिखाई थी स्टोरी थीसिस ये राइट है कि नहीं, बराबर है। तो व्हाट ही डज, ही कम्स टू मी, इज लाइक सर मोक्ष शर्म के मारे पास्ता नहीं खा रहा है, वो तो आपने बोला इसलिए खा लिया, वरना ही वांटेड टू ईट मोर। मैं लेके गया 2 पोर्शन और, उसका इंटेंशन अलग पर मेरे को कुछ और बोला। मैं तो अपन मनवार कराने 2 पोर्शन साइड से लेके गए, एक मेरे ले लिया ताकि आई कैन सिट विथ हिम एंड आई कैन ईट विथ हिम, ही विल फील कंफर्टेबल। आई थॉट ही इज फीलिंग शाय, काय का शाय, चाट ठोक दिया पीछे से, ही इज फीलिंग शाय एंड आई ईट वन विथ हिम, आई सिट विथ हिम एंड इज लाइक सर 2 पोर्शन काय को डाल दिया प्लेट में उसके, खा। अब हाउ कैन यू टेल मी दैट यू ऑलरेडी हैड 4 पोर्शन, वो बोल नहीं सकता है ना शर्म के मारे। And he is now eating the 6th portion. अब इसको मेरे पे कुछ प्यार नहीं आ रहा है, इसको मेरे पे गुस्सा आ रहा है, इसको पास्ता पे भी प्यार नहीं आ रहा है, इसको पास्ता में भी गुस्सा आ रहा है। He is feeling like he is being punished. पहले ही was like पैम्परिंग हो रहा है, वो पैम्परिंग का पी से पनिशमेंट का पी पे आ गया है। 110% सफोकेशन हो रहा है अंदर, पेट में पास्ता ही है रे, जगह एयर का बचा ही नहीं है, एवरीवेयर पास्ता ही पास्ता है। ब्लड में से निकालेगा पास्ता निकलेगा, इतना पास्ता भर दिया है, मर एकदम जैसे जैसे करके ब्रेव सोल्जर, ही इज अ ब्रेव वॉरियर, ही वाइंड्स अप द 6th पोर्शन ऑल्सो। 6th पोर्शन भी खत्म हुआ। अब क्या है, केक वगैरह आता है, बर्थडे केक है, डेजर्ट आता है, जो कुछ खाना ही नहीं है, कैसे खा सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट ही आउट ऑफ रिस्पेक्ट और आउट ऑफ एंगर है, जो भी है, आउट ऑफ शर्म, 6 पोर्शन तक पाइंट अप कर लिए। अब अगर कुछ नया चीज आता है उसके लिए विल ही हैव एनी डिजायर टू ईट दैट पर्टिकुलर थिंग। नेगेटिव डिजायर है, बोलेगा मेरे को 2 दिन अभी कुछ नहीं खाना है रे बाबा, माइंड में आता है ये सब। 2 दिन भले माइंड बोलता है, बस 2 दिन नहीं होता है, 5-6 कलाक के वहां पर भूख लगता है इंसान को, गटर है ये, बराबर। उस टाइम, आई अंडरस्टैंड माई पॉइंट नाउ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस सिचुएशन, कैन यू इमेजिन और नॉट, इन विच ही इज राइट नाउ इन, ही ऑलरेडी हैड 6 पोर्शंस, ही वाज सपोज्ड टू ईट ओनली 3, 4th ही ऐड आउट ऑफ लाइक क्रेविंग, वो मन को मार, पेट भर गया काइंड ऑफ, बट मन को मारने के लिए ही हैड गॉट द 4th ऑल्सो, कि भाई लगना चाहिए कि तमाल खाया है। फिर मैं दिख गया उसको, मैंने खिलाया 5वां, और यजत को मस्ती था इसलिए 6ठा एक्सपेरिमेंट करना भाई को ना उसको। ही वांट नहीं प्रैक्टिकल दोस्त है एकदम, तो ही वांटेड टू सी वेदर दिस एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल और नॉट। सर की थीसिस राइट है कि नहीं, कौन सी थीसिस, सिखाने वाला हो, वेट बराबर है कि नहीं, 6th पास्ता प्लेट। अगर इसको कोई 7th पास्ता गलती से ऑफर करता है, गलती से इसको कोई 7th पोर्शन ऑफ पास्ता इफ इज ऑफरिंग, ही विल प्रेफर टू किल द पर्सन बट नॉट टू ईट। फैक्ट है, 110% है। अरे सगा भाई भी आएगा ना, तू मेरा दुश्मन है, मेरे को नहीं मांगता, आई कैन नॉट ईट एटलीस्ट फॉर अ मंथ और 2 पास्ता देख के गुस्सा आएगा इसको, पास्ता वर्ड सुन के गुस्सा आएगा। ऑफ कोर्स यस, ही विल फील प्यूकिश, इतना डाल दिया बॉडी के अंदर, कैसे जाएगा, और बराबर के नहीं, श्योर। तो यहाँ पे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टोरी? नेवर हैव फ्रेंड्स लाइक यजत। पहला स्टोरी है कि नहीं, जो अपनी भावनाओं अर्चनाओं के साथ खेले और अपने को क्या बनाएगा, एक एक्सपेरिमेंट का कठपुतली, जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इज एंजॉयिंग,
बाजू से सब देख रहा है, ये यहाँ वहीं देखता है, पीछे देखा है नहीं, पीछे तैयार खड़ा था, बराबर के नहीं. He noticed everything and he's writing it down because he wanted to see whether my thesis, which I'll discuss right now, is standing true or not. अब thesis क्या है? What do we get from this particular experiment? We get to know what? The more you have of a thing, the more you have of a thing, the less you want to have the more of it. सर ये कौन सी इंग्लिश बोलती तुमने? दिमाग में एरर आ रहा है. The more you have of a thing, the more you have of a thing, the less you want to have a more of it. Sir, less, more, पास्ता सब घूम रहा है. जितना आप खाते हो चीज है, उतनी आपकी इच्छा और खाने की वो कम होती जाती है. सर हिंदी बोलो ना, मजा आता है समझने में. हाँ, तो ये स्टेटमेंट है, बट यू नीड टू लर्न दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. व्हाट इज द स्टेटमेंट? द मोर यू हैव ऑफ अ थिंग, द मोर यू हैव ऑफ अ थिंग, द मोर यू हैव, पहले मोर वाला लर्न करने, द मोर यू हैव ऑफ अ थिंग, द लेस यू वांट टू हैव द मोर ऑफ इट. ये टिपिकल स्टेटमेंट इज टिपिकली एप्लीकेबल ऑन द स्टोरी दैट आई हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ. फ्यू सेकेंड्स अगो जो स्टोरी आपने खत्म किया है, उस पे ये पूरा पूरा एप्लीकेबल है. इनिशियली उसको पास्ता खाने का फुल तलब था, अरे आने दे. तो यू आर डिजायरिंग टू ईट पास्ता और नॉट? यू हैड अ डिजायर टू ईट पास्ता और नॉट? मोक्ष, you had extreme desire to eat pasta or not? The intensity was high or not? So you wanted to have pasta, barabar? Ab listen to me, Moksha, I need your exam, I need your help. So when you were eating the first portion of pasta, जब आपने कंज्यूम किया, कंज्यूम छोड़, फर्स्ट पोर्शन तो तू लेने गया. तू लेने क्यों गया? भूख लगी थी, तो पास्ता में तेरा कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई योर हंगर. मतलब पास्ता में यू फाउंड यूटिलिटी और नॉट? ही फाउंड यूटिलिटी इन पास्ता का फर्स्ट पोर्शन और नॉट? 10 में से 10 तेरा यूटिलिटी रहेगा. फर्स्ट पोर्शन बॉस फिक्स है, घर का पास्ता है, फ्री का पास्ता है, पार्टी में आया है, 110%, 10 में 10 किसी का भी, इसका छोड़ना किसी का भी होता है. तो 10 लिमिट है, 11 नहीं मिलता. एक्स्ट्रा मार्क फॉर एक्स्ट्रा हैंडराइटिंग ऐसा नहीं होता है गुड हैंडराइटिंग. सो फर्स्ट में ही गॉट 10. The utility that he will derive, या फिर the utility that he is getting looking at the pasta first portion is 10. He starts consuming. Then he goes for the second round. Second round में तेरे को 10 में 10 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो खा रही है ना अपन ने. भले अभी भी जगह पेट में है, बट जो यूटिलिटी यू फाउंड इन विच वन? फर्स्ट वन. द सेम विल नॉट बी फॉर द सेकेंड राउंड. व्हाई? इंटेंसिटी ऑफ वांट वेंट डाउन और नॉट? पहले वाले में इंटेंसिटी जबरदस्त है, खून करने को रेडी है पास्ता के लिए, भूखा है सुबह से, ऑलरेडी अभी कुछ चला गया है फर्स्ट राउंड में. अब सेकेंड राउंड के केस में नाउ ही इज हैविंग समथिंग इन हिज बॉडी दैट विल हेल्प हिम सर्वाइव. तो इंटेंसिटी हैज वेंट डाउन और नॉट? क्लियर है? तो इन सेकेंड पोर्शन, looking at the second portion, will you go to take the second portion? Yes, he will go and he will take the second portion of pasta also. Why? Because he wants to eat. Why he wants to eat? Because that portion is having the capacity to satisfy his hunger. कितना utility? अब तू बोलेगा सर let's take 8. तीसरे में गया, स्टोरी रिपीट किया, तू बोला सर let's take 6. चौथा गया, तू बोला सर let's take 2. Are you following my point or not? Sure. मतलब चौथा मैंने आपको याद है, मैंने बताया था 48. Why? अब वो होता है ना, एक बस कुछ मन की चीज, मन को भरना हो, पेट भर गया, मन नहीं भरा, होता है बहुत बार. तो पेट भर गया था, पर मन भरने के लिए what he did, he took the 4th portion of pasta also and he ate it. बराबर है. अब 5th वाला चिपकाया मैंने. I thought he did not eat, बेचारे ने. और मेरे को बोलने वाला कौन था? ये जत. बराबर के नहीं? अब because of that, while eating that 5th portion, not while eating, while looking at the 5th portion, did he have any desire to eat the 5th portion? Why didn't he have any desire to eat the 5th portion? Because he did not find any utility or not?
Did he find any utility inside? Of course not. What did he say? नहीं का है. But ये पीछे बढ़ गया सर, और सर पीछे बढ़ा because of this particular boy. दे अब ये खाना पड़ेगा. कैसे बोलूं सर को कि पीछे ऑलरेडी बिहाइंड द सीन ये हो चुका है. He can't say that. बराबर कि नहीं? He is not getting any utility. He did not get any utility. But he is like खाना पड़ेगा सर के नाम पे. अब जब मेरे को तो आइडिया नहीं बेचारे का क्या सीन है, मैंने इसको 6th पोर्शन खिलाया, उस टाइम में खून के आंसू निकल रहे आंख में से. आई थॉट तिक्का बना इसलिए रो रहा है. बट ही इज क्राइंग बिकॉज ऑफ इट इज फीलिंग नॉट. पार्टी में नहीं आया, ही फील्स व्हाट पनिशमेंट दिया है सर ने इधर भी मेरे को. तो इन दैट सिचुएशन ही इज गेटिंग नेगेटिव यूटिलिटी. बराबर है? ये पूरा सिचुएशन क्लियर है? दिस होल सिचुएशन इज क्लियर और नॉट? फ्रॉम द फर्स्ट पोर्शन looking at it you feel this will get me utility. How much? 10. सेकंड में इंटेंसिटी गिर गया है तो 8. थर्ड में 6. 2. ये मेरे एग्जांपल्स है, ये सब मेरे नंबर्स है. या रियलिटी इट विल डिफर बट 10 के ऊपर जाता नहीं है. या एंड देन 5th में ही डिड नॉट गेट एनी यूटिलिटी बिकॉज ही इज ऑलरेडी फुल. उसका दिमाग पेट और क्रेविंग मन भरने का सब भर गया है. बट अभी क्या है, वो मैं चिपकाया है इज्जत के कारण तो चिपकाना खाना पड़ेगा. तो ही एड दैट ऑल्सो. 6th में 110% ये जाएगा बाथरूम में. ये करके सब निकालेगा वापस बाहर. नहीं फिर नहीं होता है, पागल आदमी है ये. आफ्टर प्यू तो कैसा है रे, तो मारने बैठा है, दूर रहे इनसे तू. ये क्लियर है? सो नाउ द मोर यू हैव ऑफ अ थिंग, जैसे जैसे तुम्हारा इनटेक बढ़ता गया तुम्हारा यूटिलिटी गिरता गया कि नहीं? है कि नहीं? श्योर? पक्का? द मोर यू हैव ऑफ अ थिंग द लेस यू वांट टू हैव द मोर ऑफ इट. क्लियर है? श्योर? ये जो यूटिलिटी मिल रहा है कितना मिल रहा है? 10, 8, 6, 2, 0, -2. ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? एडिशनल यूटिलिटी. मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल. सो द एडिशनल यूटिलिटी दैट यू डिराइव बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट्स. द एडिशनल यूटिलिटी दैट यू डिराइव बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट्स इज मार्जिनल यूटिलिटी. इन माय केस इट इज ओवर हियर. ये अपना जो रो है दिस कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? मार्जिनल. मार्जिनल यूटिलिटी. क्लियर है? श्योर गाइस? विजिबल टू ऑल नाउ? ओके. मार्जिनल, एक सेकेंड. हाँ परफेक्ट. सो द मार्जिनल यूटिलिटी, did it keep on increasing or decreasing? It kept on increasing or decreasing? It kept on decreasing. बॉस दिखता है कि नहीं देता तुमको? तो with every consumption the marginal utility that we derive, what? The marginal utility that we derive keeps on decreasing, or can I say diminishing? Diminish, decrease, बराबर की नहीं? तो is it diminishing or not? That is where the concept arises now. The law of diminishing marginal utility. ये law क्या law है? Law of diminishing marginal utility. As per this law क्या बोलता है लॉ? ये द मोर यू हैव ऑफ अ थिंग द लेस यू वांट टू हैव द मोर ऑफ इट. तो सर ये लॉ भगवान ने बनाया है? ऑफ कोर्स दिस इज लॉ. मतलब व्हाट इज लॉ? आप बोलोगे लॉ मतलब सर कोर्ट में बनाया क्या? क्या एक्स्ट्रा खाएगा तो बॉडी को कम खाने की इच्छा होगी एंड देन वो कोर्ट जब पैदा होता है तब इंजेक्शन मारता है? क्या बात करते हैं तुम लोग? ऑफ कोर्स नॉट. तो व्हाट इज इट? दिस इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर और नॉट? दैट इज व्हाई इट बिकम्स व्हाट? लॉ. तो लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
marginal utility, also known as law of DMU. DMU, law of diminishing marginal utility, also known as law of DMU. law of diminishing marginal utility, also known as law of DMU. क्या बोलता है? The more you have of a thing, the less you want to have, the more of it. क्लियर है? पक्का क्लियर है एकदम? श्योर? अब स्टेजेस पे समझते हैं. यहां पे इन दी स्टेजेस up till the fourth consumption, was he deriving utility or not? He was getting utility. At the fifth stage, yahan pe did he derive any utility? No. That is why this is called point of maximum सेटिस्फैक्शन. इससे ज्यादा इसकी इच्छा खाने की अभी है, खत्म हो गया, आदमी अंदर से खत्म हो चुका है. He doesn't want to eat. अब आगे if I offer him, will he prefer to take? No. Why? Because he is not finding utility. Ulta, it is creating a disutility. What is it creating? Disutility. तो ये सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट? सिक्स्थ कंजम्पशन वाला पॉइंट जो था, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी. यूटिलिटी नहीं है, उल्टा है. एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है. यूटिलिटी नहीं है, डिसयूटिलिटी है. आलू बड़ा. एम आई क्लियर विद दीज थिंग्स और नॉट? पक्का? श्योर? पक्का? ठीक है. TU मतलब क्या रहेगा? What is TU standing for? Total utility. What was this? Marginal utility मतलब MU. ये क्या था? MU. ये क्या है? TU. ये क्या है? TU. पहले वाले में you got 10, तो your total was 10. दूसरे वाले में it was 8, तो टोटल तुम्हारा कितना हो गया? 18. Of course 18 हो गया. तीसरे वाले में you got 6, तो टोटल तुम्हारा कितना हो गया? 24. Keep on adding. Fourth में you got 2, that is why it was 26. Fifth में you got 0 utility, that is why it remained 26. बराबर कि नहीं? Sixth में you got this utility of -2, that is why this became what? 24. अच्छा, looking at this, what do you feel? Does it keep on increasing or not till here? It keeps on increasing. What keeps on increasing? TU keeps on. TU keeps on. TU keeps on. Statement क्या है? TU keeps on increasing. क्या? TU keeps on increasing. कब तक? Till MU is positive. दिखता है तुमको? जब तक MU पॉजिटिव था तब तक TU kept on what? TU remains constant when MU is 0. Second point. पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? TU keeps on increasing till MU is positive. TU keeps on increase हो रहा है ना बॉस? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? अरे 10 का 18, 24, 26 इंक्रीज हुआ कि नहीं? श्योर? सेकेंड पॉइंट क्या बोलेंगे? TU remains when MU is 0. TU starts declining when MU becomes negative. TU starts, TU गिरा कि नहीं? देख इधर, यहां पे it remained equal, यहां पे it was increasing. तो TU के 3 पॉइंट है. आंसर है, आंसर पता है क्या कर रहे हैं हम लोग? रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. किसका रिलेशनशिप है ये? TU एंड MU. 3 पॉइंट लिखने हैं बस. क्या बोलोगे आप? TU keeps on till MU is positive. Till MU is positive, TU keeps on increasing. TU remains constant when MU is 0. बराबर है? TU starts declining when MU becomes negative. 2 मार्क का पूछता है वो. Explain the relationship between TU and MU. पता होना चाहिए, मैंडेटरी है. 2 मार्क का नहीं भी पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिव में 110% आएगा. 110%, इसलिए बता रहा हूं, आएगा और आएगा ही.
हर चीज ये चैप्टर का जो भी कराता हो सब कुछ आएगा, याद रखना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है। अगेन वन मोर टाइम, टी यू कीप्स ऑन व्हाट इंक्रीजिंग टिल एम यू इज पॉजिटिव, बराबर है। व्हेन एम यू इज पॉजिटिव टी यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा, इज इट इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट? सर ये क्या मतलब क्या है? 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40 ऐसा हुआ है क्या? इज इट इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट? नो, इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। मतलब सर ये क्या नया वर्ड लाया? रेट बढ़ा, 10 का कितना हुआ? ये 8, 8 से बढ़ा, 6 से बढ़ा, 2 से बढ़ा, बराबर कि नहीं? जो बढ़ने का रेट है वो डिमिनिश हो रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? टी यू बढ़ रहा है कि नहीं? टी यू इज इंक्रीजिंग और नॉट? ऑफ कोर्स यस, टी यू इज इंक्रीजिंग, बट एट विच रेट? इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट till mu is positive, tu is increasing at diminishing rate। सॉरी ये सब वर्ड लर्न करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। समझेगा तो लर्न अपने आप होएगा, वरना पेट दुखेगा, दिमाग दुखेगा, किडनी दुखेगा, सब कुछ दुखेगा। फिर दिखाओ दुखता कैसे? किडनी पूछता है कि बेच दिया आईफोन के लिए, सैमसंग के लिए बेचा है। कम बैक, क्या बोला मैंने? TU keeps on increasing at which rate? At diminishing rate. At diminishing rate. TU keeps on increasing at diminishing rate till MU is positive. TU remains constant when MU is 0. TU starts declining. TU starts declining. Falling word अपन अलाउड नहीं है। ये जो वर्ड यूज कर रहा हूं वही यूज करना है आपको। इको लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो टी यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन एम यू बिकम्स नेगेटिव। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, मालूम है क्या? व्हेन एम यू इज पॉजिटिव टी यू इज डैश पॉजिटिव। पॉजिटिव तो भाई रहेगा ही ना, नेगेटिव जाने तक तो आदमी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव नहीं होता है। व्हेन एम यू इज पॉजिटिव टी यू इज इंक्रीजिंग एट डैश रेट, डिमिनिशिंग रेट। अच्छा, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टी यू इज डैश कांस्टेंट। तो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि एम यू जब 0 है तब क्या। एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन माई एम यू इज ऑफ कोर्स 0, तो व्हेन माई एम यू इज 0 माई टी यू विल रिमेन कांस्टेंट। एट पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी टी यू डैश स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी मतलब नेगेटिव हो गया ये। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? श्योर? पक्का कि नहीं? इसका पूरा डिटेल्ड में आंसर बुक में है, अपने को बुक का ही लिखना है। वी विल नॉट एट ऑल राइट एनीथिंग आउटसाइड द बुक, वी कैन नॉट राइट। सर ऐसा कहीं को बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। आई हैड डिटेल्ड नोट्स, आई टू स्क्रैप देम 4-5 years बैक। काम का ही नहीं है। The moment you write something from your own, you use your own black points, gutter है। Post COVID they have made norms mandatory, you need to use government textbook only for eco, OC and theory subjects. That's why here we are providing notes for, yeah, of course I'll provide notes for eco। वो notes कौन से देंगे मालूम है? एक ही पेज में पूरा चैप्टर, but that is for revision। एग्जाम के एक दिन पहले यू विल नॉट गो फॉर डिटेल स्टडी, यू कैन नॉट गो, यू विल नॉट हैव टाइम। तो टक 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 देख के रिवाइज करने को मांगता है, देख के सब कुछ याद आना मांगता है। दैट नोट्स हर चैप्टर का एक शीट, वन शीट फॉर वन चैप्टर, सेकेंड शीट सेकेंड चैप्टर। सेम अप्लाइज फॉर OCM ऑल्सो, सेम फॉर SP ऑल्सो। क्लियर है कि नहीं? पक्का? कितने आंसर्स किए हमने मालूम है? अब तक लॉ नहीं हुआ है। कौन सा लॉ छेड़ा है मैंने? सिर्फ छेड़ा है लॉ को। विच लॉ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई ओनली टच्ड इट। लॉ ऑफ DMU, ठीक है। उसमें पहले हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड 2 वर्ड्स ऑफ यूटिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। देन व्हाट डिड वी डिस्कस? द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। देन वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो उसके बाद में वी हैव डिस्कस्ड द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। हमने एक स्टोरी का एग्जांपल भी लिया, प्लीज वेट। हमने एक स्टोरी का एग्जांपल भी लिया था यहाँ पे। इफ यू रिमेंबर वी टुक एग्जांपल जहाँ पे मोक्ष वाज द अतिथि एंड अतिथि था ऑफ कोर्स चीफ गेस्ट, जहाँ पे ही वाज ईटिंग पास्ता। नेक्स्ट टाइम विल नॉट ईट पास्ता नाउ, क्योंकि इमेजिनेशन में थक गया ये।
इमेजिन तो किया ही रहेगा, एंड इमेजिनेशन में बाय डिफॉल्ट आदमी बोलता है नहीं खाना पास्ता अभी. एंड दिस, अच्छा, इज दिस एप्लीकेबल ओनली टू फूड आइटम्स? बॉस, लॉ ऑफ डीएमयू इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू फूड आइटम्स. कोई भी चीज ला लो तुम. सर तुम फिक्स है, इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल टू फूड आइटम्स. अब तुम बोलोगे सर आई एम स्नीकर फ्रीक, मेरे को स्नीकर कलेक्ट करने में तुम लाओ सर 20 स्नीकर लाओ, मेरे को और मजा आएगा. इफ आई ऑफर यू सेम स्नीकर देन, तो आएगा लॉ डिटेल में जब समझेंगे तभी विल गेट टू नो कि लॉ किस सिर्फ एप्लीकेबल है, कहाँ का एप्लीकेबल नहीं है. अच्छा, पियक्कड़ होते हैं ना, पियक्कड़ जो शराबन उन पे एप्लीकेबल नहीं है. क्यों तू वाइब दे रहा है मुझे उसकी? वाई आर यू गिविंग मी दैट वाइब? हाँ, उस पे एप्लीकेबल है ही नहीं. तो किस पे एप्लीकेबल है, क्या क्या चीजें अजम्पशन में हम अज्यूम करेंगे, वो सारा चीज डिटेल में वी विल टेक नेक्स्ट क्लास. उसके पहले मेक श्योर जो मैंने आपको काम दिया था करने के लिए लास्ट क्लास में वो हो जाए. अब ये इसमें यू विल राइट डाउन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पावर एंड कैपेसिटी, देन यू विल राइट डाउन स्टेटमेंट, देन यू राइट डाउन फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, देन यू विल राइट डाउन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. बराबर है. नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, विच मीन्स नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे बोल रहा हूं मैं इको का, माई इको का दिस चैप्टर विल बी मोस्ट प्रोबेबली ओवर एंड आउट, एंड देन थर्सडे यू विल हैव अ टेस्ट. क्लियर है? फाइन, दैट्स ऑल.